A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 14 मई 14 मई को घटित हुई थी. We shall discuss all the important facts and events that are most important from the point of view of all the government exams such as the SSC, DPC and banking exam, followed by some practice questions based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. Beginning with 1657, second Chhatrapati of the Maratha kingdom, Sambhaji was born. मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1657 में. संभाजी भोसले was the second ruler of the Maratha kingdom. इनका जन्म हुआ था पुणे के पुरंदर फोर्ट में. He was the eldest son of Shivaji, the founder of Maratha Empire, and his wife Saibai. Since his mother Saibai passed away when he was 2 years old, he was brought up by his grandmother Jijabai. 9 साल की उम्र में संभाजी को आमेर के राजा जयसिंह प्रथम के हवाले करना पड़ा था as a political hostage to ensure the compliance to the Treaty of Purandhar. The Treaty of Purandhar was signed by Shivaji with the Mughals on the 11th of June 1665. Raja Jaisingh I was a Mughal commander, and as a result of this treaty, that is the Treaty of Purandhar, Sambhaji became a Mughal Mansabdar. In the year 1666, Shivaji and Sambhaji presented themselves at the court of the Mughal Emperor Aurangzeb. Aurangzeb put the duo under house arrest. 2 months later, father and son escaped. 1678 में शिवाजी ने संभाजी को अपने बुरे और गैर जिम्मेदार व्यवहार को कम करने के लिए पन्हला फोर्ट में कैद कर रखा था. इसके बाद संभाजी के विवाह जीवूबाई से हुआ था. ये एक राजनीतिक गठबंधन का विवाह था. विवाह के बाद जीवूबाई का नाम येसुबाई रखा गया था. This marriage gave Shivaji access to the Konkan coast belt. संभाजी के संतान थे भवानी बाई और साहू भोसले प्रथम. साहू भोसले went on to become the 5th Maratha ruler. Sambhaji was the successor to the Maratha throne following the death of his father Chhatrapati Shivaji. His rule lasted for 9 long years. इनको 16 जनवरी 1681 में रायगढ़ के किले में एज अ मराठा रूलर कोरोनेट किया गया था. ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि संभाजी को धर्मवीर के नाम से भी जाना जाता था. In the year 1689, Sambhaji was captured, tortured and executed by the Mughals. He was succeeded by his brother Rajaram Bhosle I. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है 1796. एडवर्ड जेनर एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट स्मॉलपॉक्स इनॉक्यूलेशन. एडवर्ड जेनर ने पहला चेचक टीका दिलाई. इतिहास में आज के दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 14 मई 1796 में on the historic day Edward Jenner administered the first smallpox vaccine, thereby giving birth to the science of immunology. एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक और वैज्ञानिक थे who pioneered the concept of vaccines. अब ये जान लेते हैं कि वैक्सीन का मतलब क्या है. Vaccine is a substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against diseases. It may be prepared from causative agents, its products or synthetic substitute treated to act as an antigen without inducing the disease. वैक्सीन या टीका एक जैविक तैयारी है जो किसी विशेष संक्रामक रोग को सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करती है. 1796 में पहला टीका एडवर्ड जेनर द्वारा आविष्कार किया गया था. दिस वाज फॉर स्मॉलपॉक्स. एडवर्ड जेनर ने एक काउपॉक्स ब्लिस्टर से फ्लूइड लिया और उसे 8 साल के लड़का जेम्स फिप्स के त्वचा में खरोच दिया. उस स्पॉट पर एक ब्लिस्टर निकला लेकिन जेम्स जल्द ही ठीक हो गया. 1 जुलाई को फिर से जेनर ने लड़के को टीका लगाया. इस बार बीमारी डेवलप नहीं हुई और टीका सफल रहा. The world's first vaccine was the smallpox vaccine.
इसके बाद पूरे यूरोप में डॉक्टरों ने जल्द ही जेनर के इनोवेटिव टेक्निक्स को अपनाया, जिससे विनाशकारी बीमारी के नए पीड़ितों में भारी गिरावट देखी गई। This achievement made him popular as the father of immunology. In the 19th and the 20th centuries, scientists followed Jenner's model and developed new vaccines to fight numerous deadly diseases such as the polio, whooping cough, measles, tetanus, hepatitis B, and many others. This is all that you need to know from this topic. Now let us have a look at the next topic of discussion for today, which is 1883. Alladi Krishnaswamy Iyer was born. अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 14 मई 1883 में इन पुडूर इन मद्रास स्टेट, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। कृष्णस्वामी अय्यर 1929 से लेके 1944 तक मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल रहे हैं। He was renowned as Diwan Bahadur in the year 1930. He was a member of the Constituent Assembly of India that was responsible for the framing of Constitution of India. ये भारत के संविधान सभा के कमिटीज में शामिल थे, including the drafting committee and the advisory committee. The drafting committee had two distinguished jurists and lawyers along with the chairman Dr. B.R. Ambedkar, and they were Alladi Krishnaswamy Iyer and K.M. Munshi. आपको ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स के नाम जरूर याद रखना होगा। वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, K.M. मुंशी, N. गोपालस्वामी अयंगार, D.P. खैतान, P.L. मिटर, Muhammad Sadullah, and Alladi Krishnaswamy Iyer. So there were totally 6 members in the drafting committee of the Constituent Assembly, apart from the chairman who was Dr. B.R. Ambedkar. 3 अक्टूबर 1953 में अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर का निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। वो है 1923 इंडियन जूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन एनजी चंदावरकर पास्ड अवे। भारतीय न्यायवादी और राजनेता एनजी चंदावरकर का निधन हो गया। 2 दिसंबर 1855 में सर नारायण गणेश चंदावरकर का जन्म हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होन्नावर नामक एक पोर्ट टाउन में। He was an early Indian National Congress politician and a Hindu reformer. He is also regarded as the leading Hindu reformer of Western India by some people. He was actively involved in the Indian National Congress. इनको साल 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एनुअल सेशन जो लाहौर में आयोजित किया गया था, इसका प्रेसिडेंट चुना गया था। Important facts to be noted here. इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 सेशंस लाहौर में आयोजित किए गए थे। 1893 के लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे दादाबाई नौरोजी। 1900 के लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे एनजी चंदावरकर। 1909 के लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालविया, एंड 1929 लाहौर सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। इन फैक्ट्स को आपको जरूर याद रखना होगा और इन फैक्ट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमिंग बैक टू चंदावरकर, नारायण गणेश चंदावरकर वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ प्रार्थना समाज और द प्रेयर सोसाइटी। प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। इट वाज इन्वॉल्व्ड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। Prarthana Samaj was a movement for religious and social reforms in Bombay founded by Atmaram Pandurang. प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानडे के आने के बाद बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता मिली। चंदावरकर जी ने महादेव गोविंद रानडे के मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज के नेतृत्व को संभाला। साल 1918 में कांग्रेस में असहमति उत्पन्न हुई और कांग्रेस 2 कैंप्स में बंट गया। तब चंदावरकर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दिनशो वाचा के साथ 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन के प्रमुख बने। He became the head of the All India Moderates Conference in 1918. आज ही के दिन 1923 में इनका निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है 1973 स्काईलैब, द यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन वाज लॉन्च्ड।
अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब लॉन्च किया गया था। स्काईलैब नासा द्वारा लॉन्च किया गया पहला संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन है। इसको लॉन्च किया गया था आज ही के दिन 1973 में फ्रॉम कैनेडी स्पेस स्टेशन इन फ्लोरिडा। इसका मेजर ऑपरेशंस था ऑर्बिटल वर्कशॉप, अ सोलर ऑब्जर्वेटरी, अर्थ ऑब्जर्वेशन और कई और एक्सपेरिमेंट्स। As of year 2021, Skylab was the only space station which was operated exclusively by the United States of America. वर्तमान में दो स्टेशंस जीवन सहायता प्रणाली के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। वो है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड टियांगोंग स्पेस स्टेशन। टियांगोंग का कोर मॉड्यूल टियानहे लॉन्च किया गया था on the 29th of April 2021. This is all that you need to know from this topic. Now let us have a look at the practice questions for today. ये सारे क्वेश्चंस आज ही के दिस डे इन हिस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है। ये सारे अभ्यास प्रश्न आपके आगामी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेहद लाभदायक होंगे। अगर आपने ये डिस्कशन ध्यान से सुना है तो इन प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस के सही जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और सही ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following Maratha ruler was known as धर्मवीर? निम्नलिखित मराठा शासक में से किसको धर्मवीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी संभाजी भोसले, ऑप्शन सी राजाराम भोसले 1 या ऑप्शन डी राजर्षि साहू। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following was not a part of the drafting committee of the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी मोहम्मद सादुल्ला या ऑप्शन डी अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following is known as the father of immunology? निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर या ऑप्शन डी रॉबर्ट कॉच। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, Who was chosen the president of Lahore session of the Indian National Congress in the year 1900? 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी मदन मोहन मालविया या ऑप्शन डी एनजी चंदावरकर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, Which was the first United States space station launched by NASA? नासा द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन ए कॉस्मोस, ऑप्शन बी सैल्यूट, ऑप्शन सी स्काईलैब या ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। With this question, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.